So I think now we are going to start our regular session CP Foundations with C++ session number 3. So today we have an interesting data structure topic. So to conduct the topic, I would like to call Dhanashri. She is a SE student, SE computer science student, and she took the initiative that she's going to volunteer for this data structure. It is very, we feel very good when people come and volunteer. So we have many chances for others who want to volunteer. They can also come and volunteer if they had some other knowledge related to our field or something else. They can come and volunteer for us. So now I would like to call Dhanashri to conduct the further session. Dhanashri, please continue. So, hello guys, myself Tanushree Gaikwad. I'm a second year student. So, in the last session, we have taken the topics of functions and 2D arrays. So, now in today's session, we'll look strings and pointers. So, can someone tell me what are strings? Strings are the array of characters. Yes, right. Strings are array of characters. So, this array of characters, it also consists of spaces as well as numbers. So I've taken an example where here is a word hamburger and here is a phrase, I ate 3 hamburgers. So these both are strings. In the second one, we have a number and we also have a space. So for representing strings, we have two types. The one is C style character string and the other one is C and the other one is class. So this string class we only use in C++. We don't use it in C because in C, we don't use classes there because we don't have their classes. So we'll see the first type, that is C style character string. So this is basically an array of characters. So here the characters are stored in an array. So here I have declared one array whose name is greeting, and these characters are stored in consecutive memory locations. And the last character, that is the null character. So in this, every array is terminated by a null character. And also, while declaring the string, we just like in vectors, we include the vector at the start. So same, while declaring strings, we have to include this string.h and cstring files at the start of the program. There are also some string functions. These are inbuilt functions. First one is the strcpy, which does the copy work. That is, the contents of string s2 are copied into the string s1. The second one is strcat, that is concatenation operation. It is basically like s1 plus s2. That is, the s2 string gets concatenated at the end of string s1. The third inbuilt function we have is strlen, that is length. So I have passed the parameter s1, so it returns the length of that string. The fourth one is strcompare. So as the name says, it compares. तो यहाँ पर दो strings compare होते हैं s1 and s2. If these both are same, it returns 0. And if str1 is less than str2, then it returns a value that is less than 0. And same, like if s1 is greater than s2, then it returns a value greater than 0. The fifth function is strchr. So in this function, we passed a string and a character. So here it searches that character in the string and returns a pointer to its first occurrence. So मतलब कैरेक्टर सर्च होता है स्ट्रिंग में और जहाँ उसका फर्स्ट ऑकरेंस है उसका पॉइंटर रिटर्न होता है.
The sixth function str that is same, बस यहाँ कैरेक्टर के जगह we pass a string, मतलब उस string का जो first occurrence है उसका pointer return होता है. So in the next slide I have included a program which will explain the working of this function. So let's see this. I have included one string which is hello, the next one is world, and the third one I haven't specified any value to it. So I have used your function strcpy. So as we know that it copies the contents. So str1 के contents str3 में copy होते हैं, and we get as we can see in the output we get hello. The next function is strcat. In this, concatenation operation takes place. That is, at the end of string 1, the contents of str2 gets appended or concatenated. So we can see in the output we get hello world. Then the third function is length function. So we want to find out the length. So we use strlen, which gives us the length. Now, as I have said, we have two types of declaration. So what is the use of the string class? As we already have one type of declaration. So let me tell you, as in the first one we have array. So we know that array is static. That is, we cannot add elements to it while runtime. Also we cannot remove the element. So string class में क्या होता है, जैसे vector में हम elements push कर सकते हैं, we can remove the elements. Then in the same way, in the string class, we can add the elements, we can remove the elements. So इसके लिए in C++ we use this string class. और यहाँ header file भी include की है string की. And in the integer main function, जैसे हम integer के लिए int declare करते हैं, character के लिए char, तो वैसे string के लिए we have declared the string data type. So as I have said that we have a string class, so there are various inbuilt functions which are associated with that. So let's see these functions. One is getLine function. So whenever we have to take some input from the user, we use this getLine function. Now user से input लेने के लिए scene function भी होता है. And we also have getLine function. So what is the difference? Can someone tell me? Getline will include spaces also. Yes, very right, Kunal. Getline includes spaces also. तो scene में delimiter white space होता है और getline में delimiter /n होता है, मतलब न्यू लाइन. सो ये मेजर डिफरेंस है. और getline में हम दो कैरेक्टर्स पास करते हैं. पहला होता है cin, कॉमा वो स्ट्रिंग जो हमें यूजर से इनपुट लेनी है. So let's move to the second question, that is a second function, that is pushback. So in this pushback, we add a character at the end of the string. तो जैसे हम वेक्टर्स में करते हैं सेम वैसा ही. और पॉप बैक में हम रिमूव करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड. So let's see this program and get a clear understanding. So यहाँ पे मैंने एक string declare की है str and then I have used this getLine function. So इस getLine function से क्या होगा? It will take a user input. So यहाँ पर output में input is code. I have taken the input as code. And then I have displayed it. Then using this pushback function, I have added this element, a character s. So we can see here the output now is quotes. Now I want to remove this element, so I have used a popback function. So it removes the character from the end of the string. Now there are various applications of strings. We can also use them with the help of pointers. Now यहाँ पर मैंने एक array of pointer declare किया है जिसके size 4 है. यहाँ पर 4 characters strings हैं, blue, red, orange and yellow.
सो क्या कोई मुझे बता सकता है यहाँ मैंने कॉन्स्ट क्यों लिखा है? It is Strings are function immutable. object. Yes, right. Because we cannot change the contents. So I have included here const. And then I have printed all these characters. So फिर हम pointers के help से भी strings को declare कर सकते हैं. Now let's see the next one using 2D arrays. तो फिर ये जो है ना ब्लू रेड ऑरेंज येलो ये एक 2D एरे है बिकॉज ये जो ब्लू रेड ऑरेंज येलो दिस इज वन एरे एंड देन दिस BLUE दिस इज द अनदर एरे ऑफ कैरेक्टर्स हेंस इट इज अ 2D एरे. तो फिर हम स्ट्रिंग्स को 2D एरे से भी डिक्लेयर कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने जो 4 मेंशन किया है अगर हम ये रिमूव भी करते हैं ना तभी भी इट्स करेक्ट बिकॉज यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट्स डिक्लेयर किए तो इट टेक्स द साइज एट रन टाइम बट ये 10 ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा. एंड देन जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रोग्राम आई हैव टेकन इंटीजर I and have printed all these elements. So let's see the another one using vector class. So ये जो है ये वेक्टर का सिंटैक्स है std वेक्टर और यहाँ पे आई हैव टेकन स्ट्रिंग. तो फिर वेक्टर का जो पुश बैक फंक्शन है वो यूज करके आई हैव एडेड येलो इन दिस एरे. सो इन दिस वे वी कैन सी दैट आई कैन ऐड यूजिंग वेक्टर. सो हमें तो पता है कि वेक्टर्स डायनेमिक होते हैं और स्ट्रिंग्स भी स्ट्रिंग क्लास भी डायनेमिक है. सो दिस इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन C स्टाइल स्ट्रिंग. तो C++ में हम स्ट्रिंग क्लास ही यूज करते हैं. Now our next topic for today's session is pointers. तो pointers are basically एक ऐसे variables होते हैं जो दूसरे variables का address hold करते हैं. और कोई बता सकता है कि pointers का use क्या है C++ में? They show address of the memory location. Yes, right. They show the address and they are used for dynamic memory allocation. और array के elements access करने के लिए भी easy होता है. Then memory efficiently allocate होती है ये pointer का एक use है. Memory space it requires less memory space तो फिर वो एक advantage है. और less memory space तो फिर execution time भी better होता है. So let's move to the theory part of pointers. Yeah, just so let's see the declaration. So यहाँ पर हम data type लिखते हैं और asterisk लिखते हैं उसके पहले and then the variable name जिसका address hold करना है. So here I have taken an integer pointer. So as I have taken an integer pointer, so it will only hold the address of integer because this is integer pointer. So now how to use a pointer? तो पॉइंटर यूज करने के लिए पहले तो हमें पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करना होता है. फिर उस पॉइंटर वेरिएबल को एक एड्रेस देना होता है कि जिस वेरिएबल का एड्रेस उसे स्टोर करना है. एंड नेक्स्ट अगर हमें उस पॉइंटर की वैल्यू चाहिए तो फिर हम डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं ये स्टार एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंटर. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल है 10 मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू 10 है एंड देन आई हैव टेकन वन इंटीजर पॉइंटर. तो दिस इंटीजर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पर वेरिएबल का एंडिंग एड्रेस इज DD4 और ये हमने पास किया है पॉइंटर को. तो फिर वी कैन सी इन दिस पॉइंटर उसने DD4 ये एड्रेस स्टोर किया है. So this is the main use of pointer.
Let's make it more clear. So ये जो स्टार होता है, this is called a dereference operator. मतलब अगर हमें पॉइंटर की वैल्यू चाहिए होती है, then we can use this dereference operator. So यहाँ पर p की वैल्यू है 0003 एंड x की 25 है. तो फिर सेम यहाँ पर पॉइंटर इक्वल्स टू एंड एड्रेस ऑफ x. तो x का एड्रेस इज 0003. तो फिर पॉइंटर में इसका एड्रेस स्टोर होगा वेरिएबल का. नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल. तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 20 एंड देन एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है IP. तो ये IP वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. नाउ I have printed here var, that is it will print the value of the variable as we can see in the output. So next is I have printed the IP. Now यहाँ IP is this. So IP is address of var and so it prints the address of that variable. And in the last one it is asterisk IP. So it prints the value of that pointer. So that is 20. Now let's see a advanced pointer notation. So this is one 2D array whose elements are 16, 18 and all. So this, the first one is the I and the next 3, that is J. And this is equivalent to this. ये जो है ना nums plus I, this is the base address. And as this is a 2D array, so we have added J here. तो अगर हमें 25 ये 25 का पॉइंटर नोटेशन चाहिए तो व्हाट वी विल डू. ये 25 इधर है, मतलब 25 का I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 0. तो फिर यहाँ हम डालेंगे I इक्वल्स टू 1, J इक्वल टू 0 एंड वी गेट दिस वन. सो दिस इज द पॉइंटर नोटेशन फॉर दिस वैल्यू 25. वैसा हम सारे वैल्यूज के लिए निकाल सकते हैं. So I hope this basic part of pointers and strings is clear. Now let's see some questions related to this. So can someone tell me what is the output of this question? So यहाँ पर हमने strchr यूज किया है. तो फिर s2 का फर्स्ट ऑकरेंस का पॉइंटर रिटर्न होगा और s2 है f. तो फिर इसका आंसर forgix होना चाहिए क्योंकि f यहाँ पर है and then this value gets printed. So let's see the answer. Yeah, it's forgix because it returns the pointer to the first occurrence. Let's move on to the next question. Let's see who can answer this. Kunal, would you like to answer this question? Oh, I think so because Anyone? Orgix. Let's see. So यहाँ पर जो है ना 6 str, it is same as str of 6. मतलब 6th पोजीशन का जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, प्रिंट होगी. मतलब आंसर O आना चाहिए. So let's see. So yes, the answer is O. Let's move on to the next question.
This is very easy question. It is basic one. So who will answer this one? A. Okay. Anyone? किसको लगता है कि इसका आंसर बी होगा? You can raise your hands. B. ओके, किसको लगता है इसका आंसर सी होगा? ओके, 1 person raise the hand. किसको लगता है इसका आंसर डी होगा? एंड किसको लगता है कि इसका आंसर विल बी ए? यस राइट, इसका आंसर ए है बिकॉज यहाँ हैव रिटन योर स्टार पॉइंटर, तो फिर पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए वी राइट योर एस्टेरिक साइन. सो पॉइंट पीटीआर इज अ पॉइंटर एंड पी इज नॉट अ पॉइंटर. So this was all the theory part of strings and pointers. So let's have a quick revision. तो पहले हमने strings देखे थे, strings क्या होते हैं. उसके बाद we saw two types of declaration of string. एक था जो array से करते थे and the next one was string class. और उसके बाद हमने कुछ functions देखे थे, get line, push back. और फिर strings के functions के बाद we saw pointers. पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका यूज क्या है. वी सॉ सम प्रॉब्लम्स इनपुट आउटपुट्स. So this was all a basic theory part which is required for competitive programming. Now we'll see some problems. So for the problem solving part, Pratik will do that. Thank you so much, Dhanashree. You did your part really well. Am I audible? Can anyone respond? Yes. Yes, Yes, you are audible. Yeah. Go ahead. Okay. Good evening, everyone. I am Pratik from TE Computer Department, and I'll be solving some problems for so that it will be good practice for not just for me, but you'll also get an experience of seeing the competitive codings. I'll just share my screen. Is my screen visible? Yep. Yes, it is visible. Okay, let's start with the easy problem. Or I'll be doing two sums on the topic strings. So this is the question, first question, alternating characters. The question says you are given a string containing characters A and B only. इस क्वेश्चन में एक हमारा रेस्ट्रिक्शन ये है कि हमें जो भी स्ट्रिंग लेना है या फिर जो भी स्ट्रिंग हमें इनपुट मिलेगा उसमें सिर्फ ए और बी कैरेक्टर्स ही होने चाहिए. डजंट मैटर कितने बार हो, वो किस ऑर्डर में हो, बट ए और बी ही होने चाहिए. योर टास्क इज टू चेंज इट इनटू अ स्ट्रिंग सच दैट देयर आर नो मैचिंग एडजेसेंट कैरेक्टर्स. एक जो फर्स्ट कैरेक्टर या फिर जो भी कैरेक्टर होगा उसके एडजेसेंट यानी उसके बाद आने वाले कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए. जैसे डबल ए होने नहीं चाहिए, ट्रिपल बी, इस तरह से. वी नीड यूनिक कैरेक्टर्स आफ्टर द फॉलोइंग द फर्स्ट कैरेक्टर. डू दिस थिंग यू आर अलाउड टू डिलीट 0 और मोर कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग. हमें उस स्ट्रिंग को अपने आइडियल स्ट्रिंग में बदलने के लिए जितने मिनिमम डिलीशंस करने हो वो पॉसिबली करने हैं. Your task is to find the minimum number of required deletions and print the final string out without duplicating alternating characters.
हमारा टास्क ये है इस क्वेश्चन में कि हमें जो भी स्ट्रिंग मिलता है उसको उसके आउटपुट में ऐसे स्ट्रिंग देना है जिसके ऑल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स रिपीट सेम ना हो, और ये भी दिखाना है कि उसमें कितने डिलीशंस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप जिस तरह देख रहे हैं 4 ए है, ए, यहाँ 3 डिलीशंस के बाद, यानी ये जो रेड हाईलाइटेड एज है, ये 3 डिलीशंस के बाद हमें स्ट्रिंग आउटपुट में देना चाहिए, वो है ए। Similarly, if we see in this question, in this example, third example, A is followed by B, then A, then B, then A, then B. In this way, there are no alternating repeating characters. So उसका deletion 0 होंगे और वही same string वापस से print करना है. Last example, we see A followed by 2 A's and followed by a B. These 2 A's should be deleted and these 2 B's should be deleted in order to print AB, and has 4 deletions and has no alternating repeating characters. All right. Let's see the approach we need to go through. It is a simple question, and we don't really need a logical or a highly thinkable code for this. So it can be done with a relatively easy approach. First, we need to require the test cases and the string input. Obviously, जो भी हमें टेस्ट केसेस, जितने हमें टेस्ट करने हैं, जितने स्ट्रिंग्स को, वो चाहिए, और हर टेस्ट केस के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए. इनिशियलाइज अ वेरिएबल टू स्टोर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड. हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जिसका हम नाम रख सकते हैं काउंट, जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितने वेरिएबल्स हमें डिलीट करना है इन ऑर्डर टू गेट द आइडियल स्ट्रिंग. ट्रैवर्स थ्रू द स्ट्रिंग एंड फाइंड द अल्टरनेटिंग डुप्लीकेट कैरेक्टर्स. हम आइडियली उस जो भी इनपुट स्ट्रिंग होगा, हर स्ट्रिंग के लिए, हर टेस्ट केसेस के हर स्ट्रिंग के लिए, उस सारे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और फाइंड करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स हमें डिलीट करने हैं, और ताकि हमें वो आइडियल स्ट्रिंग मिल जाए. यहाँ जैसे ट्रिपल ए है, तो इन 3 ए से हमें सिर्फ एक ए चाहिए, सो दैट इस ए के बाद कोई रिपीटिंग ए आए, इसके बाद एक और रिपीटिंग ए ना हो. इन 3 से एक ए, इन दोनों बी से एक बी, और इन दोनों ए से एक ए. सो इस कैरेक्टर को इस तरह से बदलना है हमें. फाइनली इंक्रीमेंट द काउंट वेरिएबल एवरी टाइम द अबव केस इज सैटिस्फाइड. इस ए के बाद एक यहाँ एक रिपीटिंग कैरेक्टर आ रहा है, तो हमें अपना काउंट वेरिएबल एक बार इंक्रीमेंट करना होगा, यानी हमें एक कैरेक्टर तो डिलीट करना ही है. इसके बाद एक और ए आया, तो हमें एक और कैरेक्टर डिलीट करना होगा. इस तरह से हमें काउंट वेरिएबल इंक्रीज करते जाना है. एंड फाइनली विल गिव द काउंट वेरिएबल एज अ आउटपुट, जो कि हमें पता चलेगा कितना वेरिएबल डिलीट होगा. जैसे इस केस में ये 1, 2, 3 और 4 कैरेक्टर्स हमें डिलीट करने हैं, तो हमें वो इनपुट वो आउटपुट भी देना है, और ये स्ट्रिंग भी आउटपुट देना है. ये हमारा फाइनली टास्क है. Any questions with the problem statement? ओके, विल जस्ट कोड. हम कोडिंग में जाए अगर, यहाँ पर मैं कोडशेफ का ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूँ. इसमें C++14 का कंपाइलर यूज होता है. ज़्यादातर कंपाइलर जो हम कॉलेज में यूज कर रहे हैं वहाँ स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल नहीं होता है, बट अब हमें इस साल से हमें स्ट्रिंग क्लास भी यूज कर सकते हैं हम. तो मैं स्ट्रिंग क्लास का ही इस्तेमाल करूंगा इस कोड को कोड करने के लिए. ओके. मोस्ट ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस. जो भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं इस हेडर फाइल से ज़्यादातर लोग फेमिलराइज है. जो लोग नहीं है उनको मैं बता दूं, ये हेडर फाइल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे हेडर फाइल्स का इस्तेमाल करना हो, जैसे स्ट्रिंग हो गया, क्लास हो गया, सी मैथ हो गया, कोनियो हो गया, फिर आयो मैने, stdio. सो ये हेडर फाइल सारे हेडर फाइल्स का एक क्लास है. इसमें सारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हो जो भी बेसिक हेडर फाइल्स होते हैं C++ में. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन. डायरेक्टली गोइंग इन इंट मेन, क्योंकि हमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करना होगा. अगर जितना हम कोड को जितना कॉम्पैक्ट रख सके वो हमारा ज़्यादातर थॉट है. इस क्वेश्चन में अप्रोच हो सकता है कि हम जितने भी कैरेक्टर्स हो उसको एक बार में ट्रैवर्स कर ले, जितने टेस्ट केसेस हो उसमें उस हिसाब से, और जितने भी अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स रिपीटेड हो उसको उसी समय डिलीट कर दे.
जैसे कि धनश्री ने हमें कुछ पॉप बैक मेथड में सिखाया था, बट उसमें लिमिटेशन ये आता है कि अगर हम एक कैरेक्टर ले, फॉर एग्जांपल ए एंड देन बी एंड देन फॉलोड बाय ए, इसमें अगर हमें बी को पुश, अगर हम ए को ही पुश पॉप कर देते हैं लास्ट वाले ए को, क्योंकि पॉप बैक का एक लिमिटेशन ये है कि हमेशा हम लास्ट कैरेक्टर को ही पॉप कर सकेंगे। तो इसमें अगर हम ए को ही पॉप कर देंगे तो हमारा स्ट्रिंग, जो आइडल स्ट्रिंग जो हमें प्रिंट करना है, वो मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि ए के बाद ऑल्टरनेटिंग सेम ए नहीं है। इसीलिए हमें एक ऐसा अप्रोच को फॉलो करना होगा जो कि आइडियली जो कॉम्पैक्ट ना करे प्रोग्राम को, सिंपल रखे, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, स्पेस फैक्टर को भी ध्यान रखना है हमें। तो फर्स्टली जैसे मैंने अप्रोच में मेंशन किया था, हम एक वेरिएबल लेंगे और टेस्ट केसेस, टी हमारा टेस्ट केस होगा। जस्ट वो हम इनपुट ले लेते हैं। फिर एक फॉर लूप, मैंने कहा था कि एक स्ट्रिंग को भी इनपुट लेना है हमें, फॉर लूप लगाकर str स्ट्रिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम उसमें अपना जो स्ट्रिंग होगा वो इनपुट लेंगे, जबकि str a हमारा स्ट्रिंग जो होगा उसमें हम अपना आउटपुट स्ट्रिंग, जो आइडियली स्ट्रिंग जो हमें फाइनली प्रिंट करना है, वो उसमें हम स्टोर करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो अगेन। यहाँ हम अपना स्ट्रिंग को सीन कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ए और बी कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सीन फंक्शन लिया है, ना कि गेटलाइन फंक्शन, क्योंकि हमें स्पेस का इस्तेमाल करना ही नहीं है इसमें। ये होगा हमारा काउंट वेरिएबल, जो हमें यूज करना है कि कितने नंबर ऑफ डिलीशंस करने हैं। ओके, ये str इज इक्वल टू a इज इक्वल टू str ऑफ 0, ये बेसिकली दिखने में अलग दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ये एक पॉइंटर है। जब भी हम एक एरे डिफाइन करते हैं, सपोज a ऑफ समथिंग, a एक्चुअली होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। उसी तरह से मैंने यहाँ पे str ऑफ 0 a में पास किया है, यानी a एक्चुअली इज पॉइंटिंग टू str के पहले कैरेक्टर को। हमें ये यूज करने का पड़ेगा ताकि हम अपना पहला वेरिएबल स्टार्टिंग से ही अपने आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट वाले स्ट्रिंग में डाल सके। जिस तरह ये वाला अगर स्ट्रिंग हम इसमें डाल देते पहले से ए में, तो इन दोनों को डिलीट करने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला, रादर देन थिंकिंग कि ये ए डालूं या ये डालूं। इसलिए मैंने ये अप्रोच के ऊपर आया हूँ। Here we'll use the function str.length. It will return the length of the entire string, कितना उस string का length है, excluding the last null character. String का आखिरी में एक null character होता है, it's like this I think. हाँ, this is the last character of a string. जब भी हम एक string डालते हैं मेमोरी में, this is the last character the string holds. str and str.length, length function does not include that null character. Okay. यहाँ str ऑफ i यानी कि जो भी कैरेक्टर होगा उसके बाद वाला कैरेक्टर, यानी i+1th कैरेक्टर अगर सेम होता है, इक्वल होता है, तो हमें पता है हमें उसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमने काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, और हर बार हम डिलीट करेंगे, यानी हर बार जब इक्वल होगा तो हम डिलीट करने के बजाय काउंट वेरिएबल को अपग्रेड करने वाले थे।
अगर ऐसा नहीं होता है, else we'll push back str of I. I plus 1 because I is already present on the string. First variable is already there. Okay, this will be the end of the for loop. After for loop, we'll go for we'll print the count and the string. Return statement. Okay, this is the final code that we are going to do over here, and this will actually be printing, giving this ideal statement if our code is correct. As you can see, I did whatever I did over there was actually the approach that I have mentioned over initially to you. So let's see if this does. So I Go think on and get. Okay. Who's anybody has a doubt? Hello. hello. Okay, Varun Pradhan. Varun, हाँ, yes, Kunal. You have to close the inner for loop also. No? Okay, where is my inner for loop? Yes, I did close here after the pushback. Yeah, sure. Varun, you raised your hand. काउंट प्लस प्लस का क्या इम्प्लीमेंटेशन है, तो क्या रोल है? ओके यहाँ पर जब हमने पहला ए एनकाउंटर किया जो कि ऑल्टरनेट सेम है ए से, पहले वाले ए से, तो काउंट को हमने इंक्रीमेंट करना था, जैसा कि मैंने कोड में भी दिखाया कि हमने काउंट को इंक्रीमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते आइडियली स्ट्रिंग को। डिलीट करने का है फंक्शन, बट वो लेंदी हो जाएगा। हमें अपना प्रोग्राम ऐसा रखना है कि जो गाइडलाइंस दिया गया है हमें क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन के तरफ से जो गाइडलाइंस दिया उसको मद्देनजर रखते हुए स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अपना कोड लिखना है। अगर हम डिलीशन कोड के लिए जाते हैं कि इस वाले ए को भी डिलीट कर दे, इस वाले ए को भी डिलीट कर दें, तो वो लेंदी हो जाएगा। वो ऑब्वियसली कंप्यूटर के लिए तो कोई टाइम है नहीं, बट स्पेस बढ़ जाएगा, जो भी हमारे प्रोग्राम का स्पेस होगा और जो टाइम होगा, जो टाइम कंज्यूम करेगा। इसीलिए रादर देन डिलीटिंग, हमने ये देखा कि कितनी बार डिलीट करना है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कितनी डिलीट करनी है और हमें फाइनल आउटपुट स्ट्रिंग देना है। तो कितनी बार यहाँ डिलीट हो रही है? तो पहला बार जब फर्स्ट ए इनकाउंटर हुआ, इसके बाद दो बार ऑल्टरनेट ए सेम है, तो एक बार और दो बार हम वही काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना बार हमने डिलीट किया, ये फर्स्ट वाला ए के टाइम पे काउंट प्लस प्लस हुआ। यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट वाला आई और ये दोनों इक्वल हो गया ऑल्टरनेट, सेकेंड टाइम जब ए फिर से इक्वल होगा, फिर से हमने काउंट इंक्रीमेंट किया। जब बी जब सेम आएगा यहाँ पर, ये दोनों बी, तब भी हमें अपना काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट करना होगा, ताकि हम कितने डिलीशंस कर रहे हैं वो काउंट दे सके। अंडरस्टूड और एनीथिंग एल्स? Yes. Okay. It was a relatively easy problem that हम ज़्यादातर इनकाउंटर नहीं करते हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे पुशबैक मेथड के बारे में जानने को मिला। क्योंकि पुशबैक बीच से नहीं बीच में नहीं डाल सकता है किसी भी वो हमेशा आखिरी में डालेगा किसी भी कैरेक्टर को। सिमिलरली उन्हें पॉप क्यों नहीं यूज किया, वहाँ पे यहाँ पे ये देखने को मिला। लेट्स रन, गिव सम कस्टम और इनपुट्स हियर। Varun, can you give me some inputs? Or Kunal, can you? Okay, Varun's giving. Okay, 3 times A. A. B. Okay. Let me just 3 times
A. 4 times C. C is not acceptable. I said C is not acceptable. I can do it for C as well, but in the thing that it's not ideally said C is acceptable. I'll show you over here. Okay. 4 times You B. can see. Okay, that's 4 times B. Okay, let's see. 5 times A. Oh, all right. I'll do that. I'll do that. But I've only given 2 test cases, so only 2 strings will be acceptable. All right. Here you see, I said I gave 2 test conditions, so 2 strings were accepted. 3 times A, as Varun said. So first A was returned because the next 2 were deleted, and the count was also 2 over here. And in the second string, 3 B's are deleted, so count variable showed 3 over here, and B. I'll give a good example as well. Okay, let's just delete this, and I'll go for BBB. And also I'll show you this example. This one, triple A, double B, and double A. Triple A, double B, and double A. Let's see. Okay, as you can see here in this string A, triple A, and triple B, 2 A's and 2 B's are deleted, and the output is AB. And the number of deleted characters are 4, 2 A's and 2 B's. Similarly for this as well, last A is deleted, this A, B is deleted, and 2 A's are deleted. That means 3 A's and 1 B is deleted. Again 4, and the output is ABA. Got it? I'll move forward for the next question. This is a relatively tough one, and you'll encounter in a lot of interview questions. So I'll show you this question. Okay, this one. Super ASCII string checker. Don't go on the wordings of the question as well. In the byteline country, a string S is said to be super ASCII string if and only if the count of each character in the string is equal to its ASCII value. You know, यहाँ तक आने के बाद ASCII वैल्यू से सब कोई फेमिलियर होंगे, ASCII क्या होता है. बट ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बिटलाइन कंडीशन है, ऐसा आप बोल सकते हैं. यहाँ पे ASCII कैरेक्टर का दूसरा डेफिनेशन दिया गया. क्या डेफिनेशन है? In the bitline country, ASCII code of A is 1, B is 2, Z is 26. एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल कोडर के लिए हम लोग की तरह ASCII वैल्यू ऑफ A हम जानते हैं 97 है, बट बिटलैंड कंट्री में क्या बोल रहा है कि A का ASCII कोड 1 है एंड B का 2 है, तो हमें अपना कोड उनके हिसाब से मॉडिफाई करना होगा. The task is to find out whether the given string is a super ASCII string or not. हमें एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, हमें ये बताना है कि वो स्ट्रिंग सुपर ASCII है कि नहीं. सुपर ASCII क्या है कि जितने नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ A और B उस स्ट्रिंग में है या फिर कोई भी अल्फाबेट का है. सपोज इस एग्जांपल में हम देखें डबल B A है, जितने टाइम B है वो उसके ASCII कैरेक्टर से मैच करने चाहिए. 2 टाइम अकरेंस है तो उसका अकरेंस 2, उसका ASCII कैरेक्टर 2 है, और फिर A का अकरेंस 1 है तो A का भी ASCII कैरेक्टर कितना है, 1 है. दैट्स व्हाई इसीलिए ये सुपर ASCII कोड के गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, इसलिए ये ASCII सुपर ASCII है, डबल B है. बट इस एग्जांपल में डबल S A B है. डबल S ASCII कैरेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो B का ही ASCII कैरेक्टर है, S का तो नहीं होगा. सिमिलरली वही B का 2 ASCII कैरेक्टर 2 है, बट यहाँ अकरेंसेस भी कितना है, 1 है. इवन इफ A का ASCII कैरेक्टर 1 है, उसका अकरेंस भी 1 है, वो इक्वल है, बट फिर भी ये सुपर ASCII इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले 3 के लिए वैलिड नहीं है. इफ ट्रू देन प्रिंट यस एंड अदरवाइज नो. समझ गए सुपर ASCII क्या है बिटलाइन कंट्री में? Okay, I'll move forward. Okay, what is the common approach for this question? क्या अप्रोच हो सकता है जब स्टार्टिंग में हम कोड करने जाएंगे तो हम एक टेस्ट विल रन अ सर्च एल्गोरिथम फॉर ईच लेटर इन द स्ट्रिंग. हम एक पूरा एल्गोरिथम सर्च करेंगे कि कौन कौन सा लेटर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और फिर उस हिसाब से 26 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा कि A के लिए कितने हैं, B के लिए कितने हैं, C के लिए कितने हैं,
और हम हर बार 26 वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम, बहुत सारे वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाएंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ जाएगा, इसलिए वो बहुत स्लो और इनइफेक्टिव है। अदर अप्रोच क्या हो सकता है? अनदर अप्रोच कैन बी हम एक एरे ही डिफाइन कर ले 26 का, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट उसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि अगर ऐसा इनपुट हो जो कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ओके अच्छा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो ये तो 1 अकरेंस दे रहा है, बी के 2 अकरेंस और सी के 2 अकरेंस भी दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस ए? इसका अकरेंस इस वाले के साथ वापस जाने में फिर से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें जानता है एरे में अगर एक बार इंक्रीमेंट कर दे फिर वापस जाना, फिर से उसे वापस से ट्रैवर्स करना यहाँ तक, वो दिक्कत हो जाएगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है स्ट्रिंग तो हमें दिक्कत होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या होना चाहिए? दिस इज द आइडियल अप्रोच। यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट एरे का। फ्रीक्वेंसी काउंट एरे हम एक नॉर्मल एरे जैसा ही है, बट उसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें हम अपना जो भी इंडेक्स होंगे, जैसे एरे इंडेक्सेस होंगे, उसको हम अल्फाबेट के नंबर्स के अल्फाबेट के कैरेक्टर्स के साथ टैली करने वाले हैं, बार बार चेक करेंगे और अकरेंसेस को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अकरेंसेस जितने होने वाले हैं हमारे स्ट्रिंग में, उसको हम अपना अपना एरे वेरिएबल स्टोर करने वाले हैं। Then we'll traverse the string and increment the frequency count each time we encounter an array and character. हर बार हम कैरेक्टर को भी इंक्रीमेंट एनकाउंटर करेंगे तो उसके उस फ्रीक्वेंसी काउंट में जो वेरिएबल्स जो भी डेटा स्टोर है उसको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। Again we'll traverse the string and check if this character has non-zero frequency and not equal to its ASCII value, then print no. अगर वो स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर है ही नहीं, सपोज बी है ही नहीं और सी आ गया, उस सिनेरियो को भी हमें सोचना होगा और उस कंडीशन में क्या आउटपुट आइडियल होना चाहिए वो भी देखने होंगे। आफ्टर द अबव स्टेप, इफ देयर डजंट एनी सच कैरेक्टर इन द अबव, देन प्रिंट यस। अगर सुपर एस्काई होता है, अगर जितने अकरेंसेस ऑफ एक कैरेक्टर का जितने अकरेंसेस है वो उसके एस्काई कैरेक्टर से मैच होते हैं, तो वो एक सुपर एस्काई के गाइडलाइंस के अंदर बैठता है। देन विल फाइनली सी हाउ टू कोड दिस वन। I'll again use the CodeChef compiler over here. I'll just delete these. Okay. We are running short of. Okay. Let's go. I'll just type again. All right. यहाँ हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था, बट यहाँ हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो चेक सुपर एस्काई, क्योंकि हम बार बार उस फंक्शन को कॉल करने से अच्छा मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ एक स्ट्रिंग s एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। This is our frequency array. You can see here is the frequency array. Before I actually do the coding of frequency array, I'll show you what is frequency array over here. This is a frequency array. This is this row over here, second row. It's actually storing the data over here. These are the indexes f of 0, f of 1, f of 2. A, B, C are actually the relevance or reference of these indexes. F of 0 is actually representing A, f of 1 is representing B, similarly f of 2 is representing C, and finally f of 26 is 25 is representing Z. Here are the ASCII characters. A is 97, B 98, Z is 123. But we know in the byteline country we have
A has a ASCII character of 1, B has a 2, C of 3. These are actually occurrences. We'll store here the occurrences of the particular character in the string we have. So if we take example of BBCACC, okay? In this one, we have 2 occurrences of B. So the data store here is B is 2. 1 occurrence of A, here is A, 1 time, and 3 occurrences of C. So 3 times we have actually stored the data over 3. Similarly, we'll code for the frequency array. Before we actually go on to modify the frequency array, we'll initialize the frequency array to 0. It's not just this will not initialize every character to 0. Every time it will change to 0. If we modify like frequency count to 1, if I say over here, if I write 1, what this will do is it will just modify the first f of 0 to 1, and rest all will be 0. So keep in mind that small fact whenever you are doing it with coding. Cannot mention insert. Alright, this is a frequency initialization. Where is my... Okay, then we'll write a for loop for int I is equal to 0 less than. I did mention about this length function in my previous example, this problem. Now the changes in the frequency. S of I is 97. Okay, what this states, जब भी हम एक ऐसे कैरेक्टर को एनकाउंटर करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग में कोई भी एक कैरेक्टर को एनकाउंटर करते हैं, उसका ASCII कैरेक्टर को ओरिजिनल ASCII कैरेक्टर से माइनस करके ही हमें बिटलाइन कंट्री का ASCII कैरेक्टर मिल सकता है. जैसे कि एक ASCII कैरेक्टर 97 था, बट बिटलाइन में उसका ASCII कैरेक्टर का वैल्यू 1 है. तो अगर हम माइनस करते तभी हम f of 0 में उसको स्टोर कर पाएंगे. इसीलिए हमने यहाँ पर ये कोड लिखा है प्लस प्लस. हर बार ए इनकाउंटर होने पे हम बिटलाइन उस फ्रीक्वेंसी एरे में इंक्रीमेंट करते जाएंगे. पहले 1 अगर एक बार इनकाउंटर हुआ ए तो 1, फिर 2 बार इनकाउंटर हुआ तो वो प्लस प्लस यानी 1 + 1 2, इस तरह से. Then we'll need another for loop. Now if if not frequency of I, अगर वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, अगर 0 इनकाउंटर होता है हमें, अगर वो स्ट्रिंग वो कैरेक्टर स्ट्रिंग इसमें प्रेजेंट ही नहीं है स्ट्रिंग में, तब क्या? तब उस केस में हम कंटिन्यू कर देंगे. हम लूप में वापस से आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे इस फॉर लूप में. अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी काउंट ऐसा इंक्रीमेंट किया, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ आई is not equal to I plus 1. Okay, what does this say? I'll show you over here. F of 0 is actually 0 plus 1. So f of I should be I plus 1. You can see f of 1 is 2, f of 2 should be 3, and so on. So f of I here, I is actually 1 over here, and this is I plus 1 यानी 2. इसलिए हमने यहाँ पर ये कोड लिखा कि अगर वो नहीं इक्वल है, ऐसा नहीं होता है, तो यानी कि अगर यहाँ occurrence 3 हो जाता है बी का, so it is not ideal super ASCII character in the Bitland guidelines. इसलिए हमने ये
कोड लिखा, अगर ऐसा होता है सो ब्रेक, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। मतलब अगर एक भी हमें ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है जिसके अकरेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं तो वहां से बाहर आ जाएंगे, हमें अब आगे के कैरेक्टर्स चेक ही नहीं करने हैं। we'll close this loop if I is equal to 26, यानी कि हमने पिछले वाले में ब्रेक एनकाउंटर ही नहीं किया, तो क्या होगा, ये लूप चलता जाएगा और I 26 वैल्यू पर आके अपने आप बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता है इसका मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिए और हमने ऐसा कोई एनकाउंटर ही नहीं किया जिसका एस्काई कैरेक्टर और अकरेंसेस मैच ही नहीं कर रहे हैं, सो वो सुपर एस्काई है। सो विल सी आउट यस। और अगर आई ऐसा ऐसा नहीं होता है कि I 26 ना हुआ ही ना हो, पहले टर्मिनेट कर गया, सो एल्स केस में विल सी आउट नो। Okay, similarly over here as well. I just made an error. This is yes. No. Finally, we'll write the main function. This will be our main function. We will declare a string. And then we'll get the string as an input, because obviously we're passing the string over here as an argument. So we need the string in the main function. And then we'll run, call the function over there. Check super. And we'll pass s into the argument. Okay, here you can, I've written the code over here, and this is the code we'll actually should run ideally. We'll see if it runs or not, but you can see here void as super as का I've mentioned. यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने void लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट कंडीशन, इसलिए हमने यहाँ पे ये नहीं किया, सुपर एस्काई को कॉल करते समय डेटा टाइप नहीं दिया है। अगर वहाँ पे हमने इंट दिया होता तो स्टार्टिंग में इंट लिखना पड़ता हमें। I'll just run this code. Okay, before I run this code, किसी को यहाँ डाउट है क्या फ्रीक्वेंसी काउंट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी काउंट, हेलो, no one? Okay, I'll just Yes, Varun Pradhan has raised his hand. Do you sorry have any हाँ question? yes sir. If else statement. Oh, Okay, condition which if else statement, which if else? means scroll up Okay, कीजिए. okay here Line 15. 15 यहाँ पर Yes. अगर फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ, इफ फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ आई, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी, सपोज फ्रीक्वेंसी काउंट यहाँ पर 0 है, यहाँ अगर सी का अकरेंस 0 है यहाँ पर, तो एफ ऑफ आई 0 होगा। Yes. और आई का नॉट यानी नॉट ऑफ 0 क्या होगा? 1। तो ये कंडीशन रन कर जाएगा। इफ 1 यानी इफ ट्रू देन कंटिन्यू। अगर फ्रीक्वेंसी काउंट 0 होता है और उसका नॉट यानी 1 हो गया तो वो कंटिन्यू करेगा। तो ये क्योंकि उसमें 0 है फिर भी मैटर नहीं कर रहा, वापस से एक लूप में जाएगा, वहाँ पर आई का इंक्रीमेंट होगा और फिर से चेक करेगा। यहाँ पे एक हमने एग्जांपल नहीं लिया है एक्चुअली वैसा वाला। आई शो यू एन एग्जांपल ओवर हियर। Pratik, can you please show the equivalent simple condition for the same?
Simple यानी कि condition. equal to 0 वाला. Okay, Just okay. I'll show that in the comment. I'll modify. Okay, here we can also have used if frequency of I is equal to 0. This is actually equivalent to this one. You see this one. Okay, Varun. This. Yes. All right. We'll run this. Okay, give me a string of any character. I'll show you an example first. I'll show you this example. Double B, A, and triple C. Okay. Double B, A, triple C. Let's see if it's a super ASCII code or not. Super ASCII string or not. The output is yes. Why it is yes? There are 3 occurrences of C, 1 occurrence of A, and 2 occurrences of B. As I said, in the super ASCII, if the occurrence of the character actually matches with the ASCII character, so here occurrence is 1 and the A का ASCII character क्या है बिटलाइन कंट्री में 1, occurrence वहाँ 1 था. B का 2 occurrence था और उसका ASCII character बिटलाइन में भी 2 है, वो भी इक्वल है. और C का 3 occurrence और 3 उसका ASCII कोड भी है सुपर बिटलाइन में. उसके अलावा देखो अगर तो D के occurrence, E के occurrence, इनके occurrence है ही नहीं. इनके occurrence 0 है. उस केस में क्या किया कोड ने? उस केस में कंटिन्यू किया और I को इंक्रीमेंट किया. जब D एनकाउंटर हुआ होगा इनको और D 0 है, फिर से I यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ होगा, फिर E के लिए इंक्रीमेंट हुआ होगा. फाइनली जब Z एनकाउंटर हुआ होगा वो भी 0 है, उनके लिए भी इंक्रीमेंट किया और ये ब्रेक कंडीशन एक्चुअली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ हर बार के लिए इस एग्जाम्पल के लिए. तो क्या किया? I 26 तक इंक्रीमेंट हुआ, फॉर लूप के बाहर फॉर लूप टर्मिनेट कर गया एज हमने यहाँ पे कंडीशन डाला है, इसलिए हमें यस आउटपुट मिला क्योंकि ये सुपर ASCII है. अगर हमने एक सी को कम कर दिया, सी के occurrence सिर्फ 2 बार कर दिए, तो ये सुपर ASCII नहीं है क्योंकि सी का ASCII कैरेक्टर 3 है और उसका occurrence 2 है. इस केस में क्या होता है? सी नो. You give me an example. Anyone? All right. So I hope you have understood how to code, okay, Varun, you have raised your hand. वो frequency count allocate कैसे होगा वो अभी फिर भी confused. हाँ. Okay. I'll just say that. Frequency count जो है हम यहाँ पर okay, ये frequency array को modify कर रहा है. ये for loop, ये वाला for loop frequency count को modify कर रहा है. यहाँ हो क्या रहा है? स्ट्रिंग को हम ट्रावर्स कर रहे हैं एंड तक, और जहां भी s of i, जो भी s of i यानी क्या है, जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे हमने एनकाउंटर किया, जैसे हमने पहला एनकाउंटर क्या किया, a हमारा पहला स्ट्रिंग का s of i यानी s of 0 a है. सो a का फ्रीक्वेंसी काउंट को इसने मॉडिफाई किया, s of i माइनस 97 यानी क्या हुआ 0. s का कैरेक्टर ऑफ a ऑब्वियसली 97 ही है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी काउंट ऑफ s of i यानी 97, a का s का कैरेक्टर 97 है, माइनस 97 जो कि हमने यहाँ पे कोड में लिखा है. ये एक मैथमेटिकल कोड होगा आपके लिए, माइनस 97 एंड उसको उस इंडेक्स को प्लस प्लस, यानी कि अगर इसको मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ 0th पोजीशन का फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस कर दो. ए जब भी एनकाउंटर हुआ तो हमने क्या किया? उसका एसका कैरेक्टर को माइनस किया 97 से और फिर उस पोजीशन में जो भी आंसर आया उसको प्लस प्लस कर दिया, यानी कि ए ऑफ यहाँ 0 एफ ऑफ 0 को प्लस किया यानी 1 कर दिया. सिमिलरली जब दोबारा अगर ए हमें मिलता है, दोबारा से अगर वापस से इस स्ट्रिंग में अगर ए होता है तो क्या होगा? वापस से ए का एसका कैरेक्टर 97 माइनस 97 होगा, एफ ऑफ 0 को वापस इंक्रीमेंट करेगा, जो अभी एफ ऑफ 0 1 है वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा. उसी तरह से जब बी एनकाउंटर होता है, बी आता है अगर, तो उसका एसका कैरेक्टर 97 नहीं 98 है. आ गया ये 98 होगा. 98 यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ 98 माइनस 97 इज 1, एफ ऑफ 1 प्लस प्लस हो जाएगा. एफ ऑफ 1 क्या है यहाँ पर? एक्चुअली बी का
f(1) is actually representing b in this frequency array, तो b को प्लस प्लस हो जाएगा। b का इनिशियल वैल्यू हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी के स्टार्टिंग में सबको 0 दे दिया था, तो 0 प्लस प्लस यानी b के फर्स्ट रेफरेंस में f(1) 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। जब b का सेकंड रेफरेंस आएगा, जब b सेकंड टाइम स्ट्रिंग में होगा, वापस से ये इंक्रीमेंट होगा f(1), तो वापस से इसमें 98 b का अकरेंस ट्वाइस हो जाएगा। हमने फ्रीक्वेंसी यार इसलिए यूज किया है कि सपोज ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ये a है फिर फॉलोड बाय b है, अगर इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अगर a के बाद c लिख दिया, फिर 2 बार b लिखा, फिर से एक c लिखा, फिर एक d लिखा, फिर c के बाद मैंने टाइप पढ़ ली, इस तरह से अगर देखो तो d के अकरेंसेज है यहाँ पे 4 बार, c के भी 3 बार है, b के भी 2 बार है, a के भी 1 बार है। अगर मैंने वो नाइव अप्रोच के लिए गया, मैं ये वाला अप्रोच, ये इस मैंने बताया था, अगर ये ऐसा अप्रोच नहीं होता है, आपको एक ऑर्डर में नहीं मिलता है, तो वापस से ए को उसमें फ्रीक्वेंसी एक एरे में, नॉर्मल एरे में डालने में आपको वापस ए को ए और 0 में जाना पड़ेगा, वापस पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, फिर यहाँ तक आना पड़ेगा। इस केस में देखिए, इस केस में अगर सी एनकाउंटर में बी है, वापस आप बी के लिए आए, फिर सी आप फिर सी के लिए आए, फिर डी है बीच में, फिर से सी है, तो वापस आपको लूप में बार बार स्टार्टिंग से वापस से हर बार ट्रांसवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो भी आपको एनकाउंटर है, एस ऑफ आई जो भी कुछ हो, ए हो डी हो, स्टार्टिंग में जेड हो, मैटर नहीं करता, आप उसको 97 से माइनस कर रहे हैं, उसका इंडेक्स निकाल रहे हैं, और इंडेक्स का जो भी पोजीशन हो, इंडेक्स का जो भी वैल्यू होगा, वहां पर उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज में, फ्रीक्वेंसी एरे, क्योंकि एस्काई कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। यहाँ पे टाइप डेफ हो रहा है, ऑटोमेटिकली ए का वैल्यू यहाँ पे कैरेक्टर से इंटीजर बदल रहा है। अंडरस्टूड वरुण? Oh, anyone else can ask a question? Yes. All right. Okay, this is all from my side. Now Faith will take over. Hello everyone. First of all, I would like to thank Dhanashri and Prateek to conduct this session very well, and they have explained us great things. Okay, so basically, as always, I am going to take one code chef problem. Most of the guys here are familiar with what I do always. Okay, so first of all, I would like to make everyone raise their hands in teams, so that I come to know that everyone is present here. Yes, I can see 3, 4, and everyone is raising their hands now. Okay, so you can take your hands down now. So we'll start with we'll continue with our session now. Okay, so this is again a code chef problem here. तो इस बार फिर से कोड शेफ प्रॉब्लम ही है हमारा, हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो हाँ, कोड शेफ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम खास है क्योंकि ये पूछा गया था अक्टूबर के कुक ऑफ में। ठीक है, कुक ऑफ कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, कुक ऑफ जो है वो कोड शेफ का मंथली कंपटीशन होता है, 2-3 घंटे का होता है। सो अक्टूबर 2020 के कुक ऑफ में पूछा गया था। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि सीपी में यही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत आसान है, आप अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा, अगर खाली हमें क्वेश्चन डिकोड करना है। ओके, सो हम लोग अब ये क्वेश्चन पढ़ के डिकोड करेंगे। अब एक बात ख्याल रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन ना इनको फ्रेम इस तरह किया जाता है कि हम लोग मतलब जल्दी आंसर ना दे पाए, ताकि कंपटीशन में जो है चैलेंज अच्छा रहे। तो हमें ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। एक बार क्वेश्चन डिकोड कर लिया हमने, मतलब एक बार अगर क्वेश्चन डिकोड हो गया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग s विथ लेंथ n। ठीक है, एक स्ट्रिंग s, लेंथ n। परफेक्ट। डिटरमाइन इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड 2 नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स a एंड b विथ सैटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, हमें मतलब डिटरमाइन करना है कि हम लोग a और b ढूंढ सकते हैं क्या, जो फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाई करती है। फॉलोइंग कंडीशंस क्या है?
A plus B is equals to S, ठीक है, where plus denotes string concatenation. अब concatenation मोस्टली सबको पता होगा, फिर भी एक बार के लिए बता देता हूँ. concatenation मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना बेसिकली, ठीक है. तो A प्लस बी S होना चाहिए. S वो लोग देंगे, A और B हमें ढूंढना है, राइट. A और B पॉसिबल है क्या, वो हमें ढूंढना है. और दूसरा कंडीशन क्या है, B इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ A, ठीक है. B A का सबस्ट्रिंग होना चाहिए. सबस्ट्रिंग मतलब उसका एक A का एक पार्ट होना चाहिए. सबस्ट्रिंग सबको पता ही होगा जनरली, ठीक है. लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे सबस्ट्रिंग, आगे देखेंगे सबस्ट्रिंग क्या होता है, लेकिन फटाफट अभी थोड़ा करते हैं. इतना पार्ट तो हमें समझ गया. अब ये नोट पढ़ लेते हैं. B इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ A if B can be obtained from A by deleting several possibly zero characters from the beginning and several possibly zero characters from the end. For example, AB in the substring, AB is is a substring of CABD but AD is not. इसका मतलब क्या कि अगर किसी स्ट्रिंग में से हम लोग आगे के या पीछे के एलिमेंट्स अगर डिलीट करें तो उससे हम लोग को दूसरा स्ट्रिंग मिल रहा है क्या. तो अगर तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा स्ट्रिंग है वो पहले स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग है, ठीक है. इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे ये जो CBAD है उसमें अगर हम लोग स्टार्टिंग का एक एलिमेंट और लास्ट का एक एलिमेंट उड़ा दे तो हमें AB मिलता है. मतलब AB इसका सबस्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का, ठीक है. लेकिन जो AD है वो जो है इसका सबस्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग को बीच में से एक एलिमेंट डिलीट करना पड़ रहा है, ठीक है. इतना समझ गया आपको. इसमें किसी को डाउट तो वो डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकता है. आई डोंट थिंक सो. सो पूरे क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, आई अज्यूम, ठीक है. तो हमें करना यही है. अब हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं. तो अरे यार, हाँ, तो ये है हमारा एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स, ठीक है. पहले हम लोग को दिया गया मतलब एज एन एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं बी बनाना. ओके, तो बनाना जो है वो पूरा एस है. ओके, अब एस के हमें दो हिस्से करने हैं, ए और बी. वो दो हिस्से कैसे होने चाहिए जिससे कि जो बी जो है ना, ये बी जो है वो ए में प्रेजेंट हो. अब ए में वो कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, मतलब ये प्रिंट करेगा यस. हमें यहाँ पे यस प्रिंट करना है, ठीक है. ये एक वैलिड स्ट्रिंग है. अब हम लोग कंसिडर करते हैं ये दूसरा स्ट्रिंग जो है zap zap. अब zap zap के हमें ऐसे हिस्से करने हैं जहाँ पे जहाँ पे जो है मतलब a इज फॉलोड बाय b, ठीक है. a और b दो टुकड़े कर दिए हमने स्ट्रिंग के. और जो b जो है वो a में प्रेजेंट है, a का सबस्ट्रिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, यस प्रिंट करेंगे, ठीक है. अब ये स्प्लिट पढ़ लेते हैं, ठीक है. अब स्प्लिट के हम लोग दो हिस्से करके देखते हैं, कोई भी दो हिस्से, ठीक है. किसी भी तरह किसी भी लेंथ के दो हिस्से करने हैं हमें, ठीक है. इस तरह कि जो ए पार्ट जो है उसमें बी प्रेजेंट हो, ठीक है. तो ऐसा यहाँ पे अवेलेबल है क्या स्प्लिट में? नहीं है. सो हाँ, नाइस. हु वाज दैट? श्रीकांत. ओ श्रीकांत. ओके, सो बेसिकली हाँ, तो ये जो है वो नो प्रिंट करेगा, ठीक है. हाँ, तो अब इसके लिए हम लोग लिटरल अप्रोच सोचने की ट्राई करते हैं, ठीक है. सो लिटरल अप्रोच क्या करेगा एग्जैक्टली तो लिटरल अप्रोच हम लोग का कुछ ऐसा होगा कि हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है. ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेंगे पहले, फिर उसके कोई दो टुकड़े करके देखेंगे. अगर उसमें मतलब पहला जो बी पार्ट जो होगा हमारा, हमने जो अज्यूम किया होगा बी पार्ट, ठीक है, वो ए में प्रेजेंट होगा तो तो मतलब यस प्रिंट करके हम लोग नेक्स्ट स्ट्रिंग की तरफ बढ़ेंगे. या फिर अगर प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे दो टुकड़े ट्राई करेंगे, राइट. पहले अगर स्प्लिट में हम लोग कंसिडर करें कि एसपीएल का एक पार्ट ले लिया हमने, एसपीएल का एक पार्ट और आईटी का एक पार्ट. ओके, आईटी का भी पार्ट, तो एसपीएल में आईटी प्रेजेंट नहीं है. ओके, ठीक है. फिर हम लोग एसपीएलआई का एक पार्ट लेंगे और टी का एक पार्ट लेंगे. समझ रहे हो? ये हमारा लिटरल अप्रोच है ना. यही हम लोग को बोला गया है कि सारे वो टुकड़े करके देखो और बेसिकली जब तुम्हें सबस्ट्रिंग अगर अवेलेबल हो ए में बी का बी मतलब
बी जब ए का सबस्ट्रिंग हो तब तुमको ये प्रिंट करना है, ठीक है, वही है ना। तो इसका हम लोग कोड सोचे थे लिटरल अप्रोच का, तो बेसिकली वो हमारे मतलब सोच से थोड़ा परे है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम लोग नहीं करने वाले। आप सोच सकते हो मतलब अगर आपको बहुत बड़ा स्ट्रिंग दे दिया, जैसे कि 50 लेटर्स का स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, तो उसे कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप सोच रहे हो। तो इसमें ना हम लोग अब एक चीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने जो है पहले के ही 2 एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, पहले के ही 2 एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ ना बी को है ना सिर्फ लास्ट वाला लेटर कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमें ये तो करना है कि ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी, ठीक है, ऐसे ही टुकड़े करने हैं, मतलब बी पहले नहीं आ सकता हमारा कभी भी, है ना। तो ए इज ऑलवेज फॉलोड बाय बी, हम लोग क्या करेंगे सिर्फ लास्ट लेटर कंसिडर करेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एन ए यहाँ पे हमको पता था कि एन ए रिपीट होना, एन ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, हम दिख रहा है ये स्क्रीन पे हमें, लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट लेटर ही कंसिडर करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि लास्ट लेटर सबसेट है क्या बाकी के पार्ट का। अगर ऐसा हुआ तो यस प्रिंट करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नो प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेम कंडीशन फॉर जैप जैप, ठीक है, इसमें भी यस प्रिंट हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए जो है वो यहाँ पे सबसेट है, यहाँ पे ही सबसेट है, मतलब ए का सबस्ट्रिंग है, बी जो है वो ए का सबस्ट्रिंग बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी जैप जैप में जो ये पी है वो पहले ही अवेलेबल है हमारे पास ए में, राइट, तो ये सबस्ट्रिंग है पी, बी भी यहाँ पे भी, तो ये यस ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और आप अगर ऐसा कोई भी स्ट्रिंग कंसीडर करोगे ना, अब मतलब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि आप कोई भी स्ट्रिंग कंसीडर करवा लो, ये सही टाइम पे यस प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये काम क्यों करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे वाई इज अ सबसेट ऑफ वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट मतलब यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रिंग करने वाले, लेकिन सबसेट क्योंकि ताकि हम लोग मैथ से हमारा जो पहले मैथ्स पढ़ा था कभी उससे रिलेट कर सके, ठीक है। तो y इज अ सबसेट ऑफ x, z इज अ सबसेट ऑफ y, देन z इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। सबसेट नहीं है यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रिंग है, लेकिन सबसेट सबसेट एंड सबस्ट्रिंग आर फेयरली क्लोज, ठीक है। तो हाँ, तो तो इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में कंसिडर करते हैं वापस से, ये हम लोग ने एक और स्ट्रिंग लिया जीजा जी, ओके, जे आई जे ए जे आई, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये जो पार्ट है वो हमारा बी होगा और बाकी का पार्ट हमारा ए होगा, राइट। अब ए में बी अवेलेबल है स्टार्ट में ही, है ना, तो ये यस प्रिंट करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जे आई में जो है वहां पे आई एक है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो पहले वाले जे आई में भी अवेलेबल होगा ही होगा, है ना। तो हमें ऐसे मतलब सारे टुकड़े बनाने की जरूरत क्या है, जब हमें पता है कि अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये लास्ट वाला प्रेजेंट होने ही वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसी तरह का हमारा कुछ कोड भी होने वाला है, बहुत सिंपल है ये, मतलब आप लोग सोचोगे नहीं, मतलब क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया था इन्होंने और कोड इतना आसान है, ठीक है। तो अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन ये वही स्टेटमेंट है, ठीक है, और इनपुट मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए इस बार एक्सप्लेन वापस कर रहा हूँ, लेकिन इनपुट वो हर बार की तरह ही है, ठीक है। आपको पहली लाइन देखो, यहाँ पे लिखा गया है कि पहली लाइन आपको एक टी इंटीजर डिनोट किया जाएगा, टी इंटीजर दिया जाएगा और जो बताता है कि आप लोगों को कितनी बार वो पूरा प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। फिर एक एन दिया जाएगा जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ओके, और फिर स्ट्रिंग दिया जाएगा, ठीक है। आउटपुट कैसे देना है, अगर वो पॉसिबल है तो यस करना है, पॉसिबल नहीं है तो नो करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लिए, एक एग्जाम्पल इनपुट भी देख लेते हैं चाहिए तो, ये 5 मतलब टेस्ट केसेस, 6 मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ये रहा स्ट्रिंग, ओके। CABD इन लोग ने जो एग्जांपल दिया है वही है, CABD और AB, ये 2 टुकड़े बन गए, इसमें से खाली हम लोग को B चेक करना है, B बाकी के पार्ट में अवेलेबल था, हाँ है, तो ये स्प्रिंट करेगा, आउटपुट में ये स्प्रिंट कर रहा है क्या पहले, हाँ। तो अब हम लोग सीधा कोड की तरफ बढ़ते हैं, कोड करने की तरफ। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। अब मैंने कोड पहले से लिख के रखा है, आप लोग को फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग एक मिनट में थोड़ा स्क्रीन दिख रहा है सबको अब,
हेलो, Yep, देख हाँ, किसी को कोई हाँ डाउट है दिख रहा है। नहीं किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक? एनीवन? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब एक आदत तुम लोग बना लो कि ना जितने भी वेरिएबल्स तुम लोग यूज़ करने वाले हो सीपी में, ओके, किसी भी सम में, तो वो पहले डिक्लेयर कर लो, बहुत काम आता है, ठीक है, मेरी बात मानो। वो पहले डिक्लेयर कर लो। और फिर ये यहाँ पे स्ट्रिंग के भी डिक्लेयर कर ली हम लोग ने, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बेसिकली, टी एन आई, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे जाके, और एक स्ट्रिंग के यूज़ के डिक्लेयर करिए, ओके। और ये रहा, एक्सेप्ट किया हम लोग ने टी, पहले टी एक्सेप्ट करना था, ठीक है। अब मैंने वाइल टी माइनस माइनस लगाया है, आप यूज़ कर सकते हो फॉर आई इक्वल्स टू 0, मतलब पूरा लूप, फॉर लूप लगा के टी तक फॉर लूप लगाना है, मतलब हम लोग को एक लूप ऐसा चलाना है जो टी टाइम्स रन होगा, ठीक है, बेसिकली वही है, हर बार मैं यही समझाता हूँ। फिर हम लोग को एन एक्सेप्ट करना है, राइट, वो उन लोग ने बोला था कि उसके बाद एन देंगे, हम लोग को एन एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर के एक्सेप्ट किया, के क्या है हमारा स्ट्रिंग, जो एस नाम का स्ट्रिंग था वो मैंने यहाँ पे के यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, पूरा के एक्सेप्ट हो गया, अब ना हमें करना ये फॉर लूप लगाना है जो के हर एक एलिमेंट को विजिट करेगा, हर एक एलिमेंट को, ठीक है। के में जितने भी एलिमेंट्स है वो सबको विजिट करेगा, कहाँ तक, n-1 तक, n तक नहीं, ठीक है, लास्ट एलिमेंट तक नहीं, लास्ट एलिमेंट के पहले तक, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हम लोग चेक करने वाले हैं बाकी सब जगह पे प्रेजेंट है कि नहीं है, तो लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाना चाहिए, वरना वो मिल जाएगा, मतलब लास्ट एलिमेंट पे मैच कर जाएगा ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अगर 6 एलिमेंट्स है, 6 लेटर्स है, तो हम लोग को 5 लेटर्स तक फॉर लूप में चेक करना है, राइट। यहाँ पे इफ लगाया मैंने, इफ के ऑफ आई, ठीक है, मतलब वो जो भी ith लेटर है वो लास्ट लेटर के साथ कंपेयर करो, हाँ, ठीक है, लास्ट लेटर के साथ कंपेयर हुआ, अगर कंपैरिजन अगर वो कंपेयर हो, मतलब अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ब्रेक कर दो फॉर लूप से। इतना समझे, सिंपल। और अगर नहीं है तो वो फॉर लूप आगे जाता रहेगा, ओके। अब इसका इम्प्लीमेंट, अब इससे होगा क्या, तो अगर वो मिल जाता है ना फॉर लूप के अंदर, अगर मैच कर जाता है लास्ट एलिमेंट के साथ कोई बीच का एलिमेंट, स्ट्रिंग का कोई बीच का एलिमेंट, तो होगा क्या कि वो n-1 आई का जो वैल्यू है वो n-1 तक पहुंचेगा नहीं, वो पहले ही फॉर लूप से ब्रेक कर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, समझ रहे हो, वो n-1 तक पहुंचेगा नहीं आई, राइट। यहाँ सबको पता ही होगा मोस्टली, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम लोग सेम पेज पे रहे। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा और वो येस प्रिंट करेगा। और अगर सपोजिंगली स्प्लिट जैसा कोई स्ट्रिंग हो, ठीक है, हम लोग स्प्लिट ट्राई करके देख लेते हैं एक बार, SPLIT, ठीक है, स्प्लिट जैसा कोई स्ट्रिंग हो तो ये नो प्रिंट करना चाहिए, राइट। हाँ, ये टी जो है वो हमारा अलग हो गया, ठीक है, पहले एस आएगा वो टी के साथ कंपेयर होगा, हाँ, जब पहले एस आएगा वो टी के साथ कंपेयर होगा, लेकिन कंपैरिजन मतलब वो इक्वल नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, एस डिलीट हुआ, आई का वैल्यू बढ़ा, ठीक है, फिर पी भी नहीं, का पी भी नहीं इक्वल है, पी भी डिलीट हो, पी भी मतलब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर एल और आई, फिर जो है आई का वैल्यू n-1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा और वो नो प्रिंट करेगा, सिंपल। अब ये रिटर्न 0 गलती से 2 बार हो गया मुझसे, ओके। तो सिंपल, ये रन करके देखे अब, एनीवन विद एनी डाउट्स, हेलो, ओके, नो डाउट्स आई गेस। तो हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने कस्टम इनपुट पहले से डाल के रखा है, वो मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन रन हो गया, कोई एरर नहीं दिया, ठीक है। अब ये कस्टम इनपुट का टिक सबको पता ही है, मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं हो तो ये कस्टम इनपुट का टिक चालू करने का हमको, अगर कोई एरर ना आए तो। और फिर यहाँ से जो है एग्जाम्पल जो इनपुट दिया हुआ है वो कॉपी करने का और वो कस्टम इनपुट के ब्लॉक में पेस्ट करने का, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद रन करना, ठीक है, रन हुआ। अब ये आउटपुट आया इन लोग का, क्या आया आउटपुट हमारा, येस नो येस नो येस। अब हम लोग वापस वो क्वेश्चन के पेज पे जाएंगे, देखेंगे एग्जाम्पल आउटपुट क्या दिया था इन लोगों ने, येस नो येस नो येस, तो हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो अब सबमिट करके देखते हैं, पूरा आंसर सही आना चाहिए, अगर हमारी कोई गलती नहीं होगी तो, आई डोंट थिंक हमारी कोई गलती है, तो पूरा आंसर सही ही आएगा।
वेट करना पड़ सकता है क्योंकि कभी कभी सर्वर स्लो होता है उनका और टेस्ट केसेस ज़्यादा है, सो रन करने में भी इनको टाइम लगता है, ठीक है। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। क्या हो गया? हाँ आ गया, देखो करेक्ट आंसर और जो टाइम है वो बता रहे हैं 0.04 सेकेंड्स, विच इज़ बेसिकली फास्ट इनफ टू गेन अ ग्रेट रैंक। ओके, तो यही था हमारा सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करो, हम लोग ने वो डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो हम लोग शेयर कर देंगे, जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, उसमें ये क्वेश्चन भी होगा और बहुत सारे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे। आज हमने अच्छा खासा थियरी भी कवर किया है और बहुत लंबा हो गया है हमारा सेशन। तो अब किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? वो पूछ सकता है, मतलब और किसी के? हाँ हाँ वरुण। वो लास्ट के हाँ हेलो। वो बोल। लास्ट के अल्फाबेट्स ही लेगा क्या, लास्ट के कैरेक्टर्स? हाँ हमें लास्ट के कैरेक्टर्स ही चेक करने हैं, मतलब पूरा स्ट्रिंग तो लेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने पूरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया, के एक्सेप्ट के सी इन के, राइट, ओके। ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने पूरा एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हमें जब चेक करना है तब हम लोग ने क्या बेटर सोल्यूशन में हम लोग ने क्या डिटरमाइन किया कि जो भी है हमारा स्ट्रिंग, सपोजिंगली ABCD, ठीक है, उसमें ना हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला लेटर है ना उसको अलग करके, ठीक है, बाकी की स्ट्रिंग जो बची हमारी उससे कंपेयर करेंगे एक एक करके, ठीक है। पहले ए से कंपेयर करें, बी से कंपेयर करें, सी से कंपेयर करें, डी से कंपेयर करें। यहाँ पे डी से कंपेयर होने पे हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, तो फॉर लूप से ब्रेक कर जाएगा और फिर वो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे यस प्रिंट करेगा, ठीक है। समझा आपको? यस। ओके, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है जो भी सीपी में पूछते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ना ऑब्वियसली। खाली फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग उनकी बहुत थोड़ी मतलब समझने में स्लोली पढ़ के समझना होता है, जो हम लोग को उस टाइम पे शायद नहीं भी हो। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने से हम लोग कुछ इनोवेटिव आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली हमारा मोटो है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बेटर सोल्यूशन हो तो आप लोग बेझिझक, वो ग्रुप आपके लिए ओपन है, ठीक है। ग्रुप और डिस्कॉर्ड चैनल जो है वो आपके लिए ओपन है, आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हो अपना जो मतलब आपको जो लगता है बेटर सोल्यूशन हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे आई गेस। तो अब मैं सेशन वापस संतोष को देना चाहूँगा। संतोष। Santosh, there's some network issue with your. Santosh, your voice is cracked. Okay, thank you, Heth, Pratik, and Dhanashree once again. It was a very informative session, and also the placement session was also very informative, I think. So thank you, everyone. We'll meet in our next session. So I hope now, and I'm going to share some important problems with you related to strings. So do solve them to take a grip on strings. So and as usual, I would like to end this session now, and thank you so much. Thank you, everyone. Rohit, please end the meeting, right?